چلتے پھرتے جمعہ کے دن دولت کی تسبیح اللہ الصمد 20 کروڑ کی حاجت ایک دن میں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ الصمد اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ الصمد اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جو رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ایک نقطہ بھی بہت زیادہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں اور آیات ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو صرف رزق کی تنگی کو دور کرتی ہیں اور رزق میں بے پناہ اضافہ کرتی ہیں۔ سورت کوثر کی فضیلت کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہیں۔ قرآن مجید میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورت کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورت مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے۔ اس سورت کے صرف 3 بند ہیں۔ سورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورت کوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کہ کوئی سورت کوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورت کوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت پورا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورت کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورت کوثر کے چند فوائد ذیل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورت کوثر پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں۔ 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس سورت کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس سورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑ روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی گھر میں، اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی
जाएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, समझ आपकी खत्म हो जाएगी कि ये पैसा कैसे आ गया। मोहतरम नादरीन, आजकल पैसा हर इंसान की जरूरत है। पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि अखराजात कैसे और कहाँ पूरे करे। नादरीन, ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानी के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत हो पूरी, बड़ी से बड़ी मुरादें हो, बीमारियां हो, तकलीफ हो, दुख हो, परेशानी हो, बे औलादी हो, रिज्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं उनकी नीयत कीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मुआवजा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये वजीफे अल्लाह ताला की बाबरकत नामों की और कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतों के होते हैं, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। जब परेशानी खत्म हो जाए तो जिंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया कि ये जो मुजर्रिब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये मुजर्रिब वजीफा रिज्क और दौलत के लिए जो आज आपको वीडियो पर बताया जाएगा, यकीन माने और यकीन कीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर उसको दौलत, फौरी तौर पर उसको रिज्क ना मिला हो। यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं और फायदा नहीं होगा। मेरी बातों पर यकीन कोई नहीं करेगा और वो बंदा ही फायदे में रहेगा जो ये वीडियो देखकर ये वजीफा पढ़ेगा और जो अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ेगा। इंशाअल्लाह उसको मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह उसके कारोबार में बरकतें खत्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा जुमा के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा कर सकते हो। चलते फिरते इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ लेना। मेरे दोस्तों, इस वजीफे को जिसको भी बताया, ये कई सौ साल पुरानी किताब से निकला हुआ वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ लें। अब आप लोग पूछेंगे कि कितने दिन करना है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा जो है वो एक दिन का अमल है। एक दिन आप इस वजीफे को कीजिएगा। इस अमल को मेरे दोस्तों अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अब मैं आप लोगों को वजीफा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाएं। जुमा के दिन किसी भी वक्त, सुबह शाम, रात को, कोई भी वक्त हो, जिस दिन वीडियो आप तक पहुंच जाए तो नोट करके जुमा के दिन करना। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की। मोहतरम नाजरीन, अहादीस में यौम जुमा को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। हजरत अब्दुल मुंजर रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के यहाँ सब दिनों से ज्यादा अजमत वाला है। ये अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी और ईद उल फितर के दिन से भी अजीम है। इसकी 5 खूबियां हैं। इसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसमें आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा, इसी में आदम अलैहिस्सलाम को फौत किया। इसमें एक ऐसा वक्त है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से कोई भी चीज मांगे, अल्लाह ताला उसे जरूर अता करता है, बशर्ते वो हराम ना हो। और इसमें कयामत बर्पा होगी। हर मुकर्रब फरिश्ता, आसमान और जमीन हुआ, पहाड़ और समंदर जुमा के दिन खतरा महसूस करते हैं। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के रोज गुस्ल करे और हस्बे इस्तात तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुमा के लिए निकले और सफों के दरमियान पुरसुकून बैठे हुए 2 आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, उसके इस जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इस हदीस को इमाम बुखारी, इब्ने माजा और अहमद ने रिवायत किया है। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफा किस जगह करना है अब ये समझ लें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जगह की कोई पाबंदी नहीं है। जॉब पर हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, दस्तरखान पर हो, तो मस्जिद में मौजूद हो, ये वजीफा पढ़ लो। आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई बहाना नहीं बनाना कि मेरे पास वक्त नहीं था, मैं घर में नहीं था, टाइम नहीं था। जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पढ़ लो। बस ये वजीफा पढ़ना है। आपको दौलत के बरसने का इंतजार करना है। इतनी दौलत बरसेगी कि खुद भी कमेंट में कहोगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा रिस्क आया है। दोस्तों, अपनी हाजत की नीयत कर लें। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, आप उसकी नीयत कर लें। जाती मकान चाहिए तो ये कह लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए, उसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मुझे रकम मिल जाए, जो रकम चाहिए वो मांग लेना। जो मसला हो, जो बीमारियां हो, तो ये कहना कि मेरी बीमारियां खत्म हो जाएं, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। एक हाजत के लिए ये वजीफा एक दिन करना है। दिन में एक हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी कोई हाजत हो, आपकी
कोई दूसरा मसला हो उसके लिए दूसरे दिन पढ़ लें, तीसरी कोई हाजत हो, तीसरा कोई मसला हो उसके लिए तीसरे दिन पढ़ लें। मतलब एक हाजत के लिए दिन में एक मरतबा पढ़ना, बहुत सारी हाजतें हैं आपकी तो इनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग हाजत की नियत करके दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। कोई सा भी दरूद पाक जो आपको याद हो वो आप लोग एक मरतबा पढ़ लें। बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि नाज़रीन दरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करता है और उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता था। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। वो मौके जहां दरूद शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए, वैसे तो दरूद शरीफ किसी वक्त या मौके की कैद के बगैर कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, ताहम बाज मौके ऐसे हैं जहां इसके पढ़ने की खसूसी ताकीद की गई है। इसमें से कुछ तो मशहूर है, मसलन हर नमाज के आखिरी तशहद में, कनूत वितर के आखिर में, नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद और खुतबा जुमा वगैरह में। इनके अलावा मजीद कुछ मौके ये हैं। हजरत फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते हुए सुना। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने जल्दबाजी की है। फिर आपने उसे बुलाया और फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ ले तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ और सना बयान करे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है और कोई दुआ ऊपर नहीं जाती, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो जिक्र करने और सुनने वाले दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद न भेजा। नेज इरशाद फरमाया, बकील है वो जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी इस तरह कहो जैसे वो कहे, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है या 10 मर्तबा उसकी तारीफ करता है। तो इसलिए एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने की फौरन बाद आप लोगों को सबसे पहले अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, या आप वैसे भी गिन कर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। बहुत ही आसान सा वजीफा। दरूद पाक पढ़ने के फौरन ही बाद आप लोगों को 100 दानों की एक तस्बीह अल्लाहुस समद की पढ़नी है और उसके बाद 7 मरतबा या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू 7 मरतबा या रज़्ज़ाकू पढ़ने के बाद 7 मरतबा ही सूरत कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। 7 बार सूरत इखलास पढ़ें और उसके फौरन बाद नाज़रीन आप दरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें जो शुरू में पढ़ा था, और अपने बटुए पर, अपनी अलमारी पर, जहां पर आप पैसे रखते हो, अपनी दुकान के गल्ले पर फूंक मार दें। नाज़रीन, इतना आसान सा वजीफा है, जिस तरतीब से, जिस तादाद से बताया है वही कीजिएगा। और आखिर में दरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी दुकान के गल्ले पर, तिजोरी पर, अपने घर की अलमारी पर, मेरी बहनें जो हैं वो अपने परस पर, और मेरे भाई एक मरतबा अपने बटुए या जेब पर एक मरतबा या 3 मरतबा दम कर दें, फूंक मार दें। नाज़रीन, इस अमल की बरकत से आप लोग इस अमल को रोजाना कर सकते हैं तो रोजाना कर लें। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो जब जिस दिन आपको वक्त मिले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफे के लिए एक ही शर्त है कि बावजू हालत में ये वजीफा करना है। अल्लाहुस समद अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। अल्लाहुस समद के मायनी सरदार, रब है, बेनियाज, गैर मोहताज के हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहुस समद वो होता है जो न किसी की औलाद हो
اور نہ جس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ الصمد، الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم، حکمت و حلم، قدرت، عزت اور سب صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہو، اور کائنات میں بسنے والی تمام اشیاء اپنے تمام معاملات میں اس کی کلی محتاج ہوں، مصائب و آفات میں اسی کو پکارتی ہوں، اور جب غم و ندو کی کرب ناکیاں ان کو گھیر لیں تو وہی ان کا مقصود و مطلوب ہوتا ہے، اور جب حزن و ملال کا گھٹا ٹوپ اندھیرے ان پر چھا جاتے ہیں تو اللہ ہی سے وہ فریاد کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہی اللہ کا حاجت رواں اور مشکل کشا ہے، اور وہی ان کی پریشانیوں اور کرب و علم کھول سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل و کمال ہے اور اس کی رحمت واسع ہے، اس کی شفقت مخلوق کے ساتھ محبت، لطافت اور رحم و کرم کا لامحدود ہے، نیز اس کی قدرت و سلطنت عظیم ترین ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔